ہم نے ان کو خون پلایا، ہم نے ان کو پالا، ہم نے ان کو پوسا، ہم نے ان کو سینچا، ہم نے ان کو دھتکارے ہوئے کو قوم کو ہم نے اپنے ملک میں جگہ دی، ہم نے پناہ دی، ہم نے 30 سال ان کو پالا، اور 1-2 کو نہیں 30 لاکھ کے قریب مہاجرین کو پالا۔ انہوں نے جھوٹ بول بول کے پاکستانی شہریتیں لے لیں، رشوتیں دے کے انہوں نے کہیں پاسپورٹ بنوا لیے، اور باہر جا کے یہ جرم کرتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی ہیں۔ یہ بھک منگے جو ہیں افغان، انہوں نے اپنے ملک کا تو نام کیا وہ تباہ، انہوں نے پاکستان کا بھی نام کا بھی خراب کیا۔ لیکن اب انف از انف۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہمیشہ سے پیچیدہ رہے ہیں۔ جو افغان نیکسس ہے اس کے اندر جو ہے باقاعدہ ظاہر ہے اسرائیل کی آشیرواد وہ بھی شامل ہے کہیں نہ کہیں۔ کب ہو گیا یہ؟ کیونکہ اس کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ ہمیں بلوچستان میں بھی کہیں نہ کہیں ملتے ہیں۔ کب ہوا کب؟ افغانستان کی منافقت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ بھارت جیسا ملک بھی نا آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار نہیں کرائے کا سپاہی سمجھتا ہے۔ چل چھٹی جب چاہو جیسے چاہو دام لگاؤ اور اپنے لیے پھر استعمال کر لو۔ آپ لوگ رونا بند کیجیے۔ اس کے باوجود ہمارے یہاں کچھ لوگ ماشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ان اسلام کے جعلی ٹھیکیداروں سے، امت کے غداروں سے بات کی جائے۔ ہسدے چہرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ 2021 کی اگر بات کی جائے تو افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد اسلام آباد نے یہ سوچا تھا کہ شاید ایک نئے دور قربت کا آغاز ہوگا، کیونکہ اب کابل کی حکمران قوت وہی ہے جس کے کئی رہنما برسوں تک پاکستان کی مہمان نوازی سے فیض یاب رہے، مگر 2 برس کے اندر اندر وہ تمام خوش فہمیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں جنہیں ہم نے برادرانہ تعلقات کا نام دیا تھا۔ سالا یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے۔ جو پاکستان پر حملے کے لیے تو دہشت گردوں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن کشمیر کی آزادی کے لیے مجاہدین اور مظلوموں کی صف میں لڑنے کے بجائے ظالم اور قابض بھارت کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ہلا ڈالا نا؟ جو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ان کے حلق سے آواز تک نہیں نکلتی۔ کیا واقعی ان سے بات کی جائے؟ ہاں بھائی ہاں۔ یہ وہ ہیں جو ہماری مساجد پر حملہ آور ہوتے ہیں، کیا واقعی ان سے بات کی جائے جو ہمارے علماء کرام کو شہید کرتے ہیں؟ ہاں بھائی ہاں۔ دوسری جانب سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک دوحہ ایگریمنٹ کی باقاعدہ وائلیشن ہوئی ہے اور یہ بڑی ایک پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ وہی دہشت گرد گروہ جو کبھی افغان سرزمین پر پناہ گزین تھے اب پاکستانی شہریوں کے خون سے کھیل رہے ہیں۔ ہم ان کو پال کے رکھتے ہیں اور یہ انڈیا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی جو حملہ ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر، افغان فورن منسٹر جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے، اینڈ ہی از اے وانٹڈ مین۔ اس کے انٹرنیشنلی اس کے اوپر بین لگا ہوا ہے سب کچھ، لیکن انڈیا میں وہ آفیشلی ہے وہاں پہ اور دعوتیں کھا رہا ہے اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف وہ ساری کاروائیاں کر رہا ہے۔ تو یہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ جو بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہیں، کیا واقعی ان سے بات کر لی جائے؟ جو ہمارے بازاروں میں بم دھماکے کرتے ہیں۔ اچھا بات نہیں ہے۔ اور 2 برادر اسلامی ممالک کی فوجیں آمنے سامنے آ جائیں اور ان کے بیچ میں گولی چل جائے، شیلنگ ہو جائے اور بہت ساری جانیں چلی جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہوا ہے۔ اب یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے جتنے دہشت گردی کے اڈے تھے ان ساروں کے اوپر حملہ کیا، ہم نے افغان عوام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ان کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ اور دیکھیں اب یہ کتنی دیر چلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کتے کی دم ہے، یہ آپ اس کو 100 سال بھی رکھ دیں تو یہ اس نے سیدھا تو ہونا نہیں۔ کیا واقعی ان سے بات کی جائے جو ہمارے شہریوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے ہیں؟ کیا بات ہونی چاہیے ان سے؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان لڑائی رکنے کے بعد جو ہے وہ اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے مار دیے اور ہم نے اتنے مار دیے، یہ چل رہا ہے۔ میرے خیال میں زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ لڑائی افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں ہوئی ہے، اور افغانستان کی اس فورس نے پاکستان کے ساتھ لڑائی کی ہے جس فورس کو پاکستان نے خود تربیت دی تھی، پاکستان نے خود ان کو تیار کیا تھا۔ یہ طالبان پاکستان کی سرزمین پہ بنائے گئے ہیں، پاکستان کے مدارس میں پڑھے ہیں اور پاکستان کی فوج نے ان کو تیار کیا ہے۔
है। उस वक्त पाकिस्तान की फौज को रियाल और डॉलर्स मिलते थे और उनके एवज जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत उस वक्त की ज़ियाउल हक साहब का दौर था तो वो ये खिदमात सर अंजाम देते थे। बहुत सारे जर्नैल जो हैं वो अरबपति बन गए, उनकी औलादें संवर गईं, उनके पास आज भी बेशुमार पैसा है और वो पैसा अफगान वार के दौर में आया था। बेशुमार लोगों ने स्मगलिंग का कारोबार किया और सब ने इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोए हैं और अब दोनों ममालिक को एक दूसरे से गिला है, शिकवा है। अफगानिस्तान ने इल्जामात लगाए, पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने 200 से जायद वहां पे जो अफगानी है उनकी जानें ले ली हैं और इसमें उन्होंने बताया जी बहुत सारे जो है इससे ज्यादा उनके जख्मी भी हुए हैं, जबकि अफगानिस्तान ने कहा जी नहीं वो जो हमारे दुश्मन की गोद में बैठकर हम पर ही हमला करते हैं। क्या इनसे बात होनी चाहिए? जो कलदम टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद को हर महीने 43,000 डॉलर देते हैं, क्या वाकई बात करनी चाहिए इनसे? जो रोज हमारे बहादुर अफसरों को, हमारे जवानों को शहीद करते हैं, क्या इनसे बात होनी चाहिए? जो 40 साल से यहाँ कमा रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, लेकिन इसका हक अदा नहीं कर रहे हैं, क्या इनसे बात करनी चाहिए? अगर ये हकीकत जानने के बावजूद भी इनसे बात करनी चाहिए तो फिर इन्हें बातचीत का यही तरीका समझ आता है जो कल रात इख्तियार किया गया। हमें मालूम है कि दहशतगर्द जो है वो कहाँ ट्रेन हो रहे हैं, जहां दहशतगर्द जो हैं उनके ठिकाने कौन से हैं। और अब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अफगान आर्मी जो है उसमें से जो हमें उनके हेडक्वार्टर्स में टीटीपी के लोग जो हैं और दाइश के लोग, आईएसकेपी के लोग और इसी तरीके से मजीद ब्रिगेड और बीएलए के लोग जो है उनको वहां हम देख रहे हैं। आखिर ये वजह क्या है? इसका मतलब यह है कि चंद टुकड़ों के पीछे जो इस टाइम पे उनकी एक नाजायज हुकूमत है, जो जबरदस्ती सेल्फ प्रोक्लेम्ड हुकूमत है, जबरदस्ती मुसल्लत है लोगों के ऊपर, उसके खिलाफ उनकी आवाम को बगावत करनी चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए कि वो एक काफिर डू यू सी दैट हैपनिंग कि आवाम जो है हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाए? डू यू सी दैट हैपनिंग कुल साहब? सर, आई सी इट इन नियर फ्यूचर। मैं ये देख रहा हूं कि ये हालात जो हैं इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि मैं भी, आपको पता है, बड़ा एक उनके साथ बातचीत रहती है। पाकिस्तानियों ने सोचा था कि हम अफगानिस्तान में जाएंगे और उनके ऊपर बम गिरा के आ जाएंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपकी क्या ओपिनियन और क्या रिएक्शन है? से भाई जो गिफ्ट है एम्बुलेंस का वो तो अभी दिया उन्होंने। अच्छा। और वैसे भी इंडिया अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट करा फाइनेंशियली, यहाँ तक पार्लियामेंट उनका बनाया, डैम उनके बनाए, उनके क्रिकेटर अफगानिस्तान में डैम, अफगानिस्तान में, और उनके क्रिकेटर को बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। तो फाइनेंशियली इंडिया उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, अभी से नहीं कर रहा, बहुत देर पहले से कर रहा है। ठीक है। तो अगर अफगानिस्तान का जो मिनिस्टर है वहाँ जाके ये बात कर रहा है, पाकिस्तान को धमकी चमकी दे रहा है, हाँ। तो हो सकता है इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है इसलिए वो धमकी दे रहा है ना। ठीक है। तो उनके साथ रिलेशन उनके अच्छे हैं। हर मुल्क चाहता है कि मेरे जो साथ वाले हमसाये उनके साथ मेरा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो इंडिया और अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हैं इंडिया के। ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के मतलब पाकिस्तान अलग से रिलेशन बना रहा है अपने। तो इस्लामिक कंट्री के लिहाज से कि अफगानिस्तान इस्लामिक है, पाकिस्तान इस्लामिक है, ये नहीं, लेकिन हर बंदा अपना देखना फाइनेंशियली मुझे कहाँ से फायदा हो रहा है। हाँ। पाकिस्तान को फायदा कहाँ से होगा? कंट्रीज का मजहब नहीं होता, कंट्रीज का मतलब या उनका इंटरेस्ट होता है। सर, उन्होंने अपने मुल्क को चलाना होता है। हाँ। चाहे वो इंडिया से पैसे लेकर चलाए, चाहे वो पाकिस्तान से पैसे लेकर चलाए, चाहे वो रशिया से ले, चाहे अमेरिका से ले, बिल्कुल उन्होंने अपने मुल्क को चलाना है। तो अगर इंडिया उनको इतना फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, उनके क्रिकेटर को इतना सपोर्ट कर रहा है, आपको पता होगा आईपीएल उनके जो प्लेयर खेलते हैं बड़े पैसे देते हैं उनको। ठीक है। अफगानिस्तान को, यहाँ तक कि जो इंडिया अपना बजट है मंथली या सालाना वो सेट करते हैं अफगानिस्तान के लिए, इतने पैसे हमने उनको देने हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों आपने देखा होगा जल्जला आया था, तो उधर भी उन्होंने सपोर्ट किया, उधर भी उन्होंने फाइनेंशियली काफी पैसे दिए उनको। तो आप देख सकते हैं इंडिया इन आउट उनको सपोर्ट कर रहा है, पैसों से भी कर रहा है, वैसे भी कर रहा है। कुछ खुफिया एजेंसियां जो इंडिया के साथ अफगानिस्तान के मिलकर काम कर रही हैं। ठीक है। और अच्छा खासा रिस्पॉन्स करती वो है। अच्छी बात है अगर उनका रिलेशन, उनके साथ इंडिया का अफगानिस्तान का रिलेशन बेहतर होता है। वो उनकी अपना मतलब एक पर्सनल इश्यूज हैं, लेकिन पाकिस्तान से जो नाराजगी है अफगानिस्तान की, वो क्या नाराजगी है? मतलब ये आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखते हैं कि पाकिस्तान को जब भी, आपको पता होगा कि अमेरिका को जो उन्होंने अड्डे दिए थे पाकिस्तान ने, ठीक है, एक तो ये उनको गिला शिकवा है कि यार इन्होंने हमारे साथ, हम नेबर है, तो उस मुल्क को अड्डा दे रहे हैं जो हमारे खिलाफ है। तो ऊपर से हम इस्लामी मुल्क है, तो इस्लाम होने के नाते, इस्लामिक मुल्क होने के नाते एक दहशतगर्दों को, मतलब अमेरिका को वो दे रहे हैं, अड्डे दे रहे हैं हमें मारने के लिए। तो ये उनको गिला है। दूसरा ये आपने देखा होगा कि काफी देर पहले, करीबन 1 साल हो गया, तो जो पाकिस्तान में पठान भाई थे हमारे, जो अफगानी भाई थे, उनके उन्होंने कार्ड चेक किए, आईडी कार्ड चेक किए, उसके बाद उनको निकाल के अपने मुल्क में भेज दिया। अब कई अफगान एक नस्ल भी है ना, कई अफगानी ऐसे थे
जो पाकिस्तान में रहते हैं उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की तरफ से, वो पैदा पाकिस्तान में हुए हैं, बिजनेस यहाँ पे करते हैं, घर उनका यहाँ पे, कारोबार उनका यहाँ पे, तो उनको भी निकाल दिया, ये भी ज्यादती है। लेकिन कोई भी इलीगल बंदा अगर पाकिस्तान में रह रहा है तो भाई पाकिस्तान क्या किसी भी मुल्क में रह रहा है इलीगल बंदा, उस मुल्क की ये पॉलिसी है कि उस बंदे को निकाल के अपने मुल्क भेजना है। ये बिल्कुल राइट है, और पाकिस्तान ने निकाला है तो जाहिर सी बात है कुछ देख के निकाला होगा। लेकिन ये हाँ वही ना कि अगर तो कोई वाकई में इलीगल है उसे निकालना, पाकिस्तान को महफूज करना हम सब की, हमारे इदारों की, इंतजामिया की जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत से अफगानी भाइयों का ये गिला शिकवा है कि हमने आज तक अफगानिस्तान देखा ही नहीं, हम तो हमेशा मतलब पैदा भी पाकिस्तान में हुए हैं, बिजनेस भी इधर कर रहे हैं, आईडी कार्ड भी हमारा पाकिस्तान का है, टैक्स भी पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन हमें भी अगर वापस भेजा जाएगा कि भाई हमारे बड़े, हमारे जो पेरेंट्स हैं, अबाओ अजदाद हैं, वो अफगानिस्तान से आए थे, इसी बेस पे हमें भी वापस भेज दिया जाएगा, तो हम उधर जाके क्या करेंगे? मतलब वो अब जो सारी जिंदगी रहा इधर है, आपको आज लेट्स सपोज कह दिया जाए चलो जाओ आप अफगानिस्तान, आपके पापा अफगानिस्तान से आए थे, तो क्या आप इस पे करेंगे? सर कुछ भी नहीं ना, आप ये देखो ना कि आप एक घर से निकाल के आप उधर भेज रहे हैं, जो पता ही नहीं, मैं कभी गया ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर मेरे वालिद वहाँ पे रहते थे तो मेरा कसूर तो नहीं है अगर वो पाकिस्तान में आके रहने लग गए। तो जब आप पाकिस्तान में आके रहने लग गए, उनको आपने आईडी कार्ड दे दिया, उनके बच्चों को आईडी कार्ड दे दिया, तब आपको सोचना चाहिए था यार ये अफगानी है, ये हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं, तो वापस भेजो। तब आपने नेशनलिटी दे दी उनको, तब उनको आईडी कार्ड दे दिए। तो जब बड़े हो गए आप कह रहे हैं आप अपने घर वापस चले जाओ, कौन सा घर में, मैं तो घर देखा ही नहीं कभी वो। मैं वाशिंगटन में देख रहा हूँ किसी किस्म की कोई एपिटाइट एंड डिज़ायर अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में अभी तक नहीं है कि अफगान तालिबान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना है, कुछ करना है, ऐसी कोई डिज़ायर नहीं पाई जाती। हम कोई अगर केस बना रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन रशिया रिकग्नाइज कर चुका है अफगान तालिबान को, चीन के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आने वाले दिनों में ये ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान, चीन और रशिया अफगान तालिबान को बेहतर असलाह देने लग जाएं, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देने लग जाएं, और ये एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल जो है हमारे यहाँ डेवलप हो रही है।